Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Am I audible to all of Yes, you? sir. Yes, sir. So, in previous class, what we completed? Sir, mineral and energy resources. Some mineral and energy resources. Okay. So, I hope all of you have prepared a notes based on that, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. I'm not hearing any voice from Krish, Verma, Yukti, Narayan. Are you there in this call? Yes, sir. Yes, sir. Nidhi Kumari, Rishabh Singh. Yes, sir. Okay. So, I hope that you all have prepared your notes and, went through the concept, went through the data, right? Yes, sir. Okay. So today we will be doing a new chapter. Which chapter we need to start? Sir, the making of a global world? Yes, the making of a global world. Okay. So before I go ahead with the making of a global world, I would like everyone to, open up your book. So anyone out there can give me a basic concept related to globalization. Have you ever heard of globalization? Yes, sir. Yes, sir. So what do you understand by globalization? If someone asks you in a layman term that what do you understand by globalization, then what will you answer? Yes, Manas. Sir, in layman's language, we can say that, sir, globalization is something when a product or something which is available in a particular area, sir, it is globalized means it is available to a large number of people, and people of all over the globe can access it, or it can be a kind of service. Sir, we can say this. Okay. Yes, anyone else who wants to add something to this? That what globalization actually stands for, or is it a new phenomena or the older one? Means anything which comes in your mind, you can discuss. Yes or no? सर जो ये ग्लोबलाइजेशन है सर, इसके बारे में सर एग्रीकल्चर में भी पढ़ा था। तो सर उससे मैं ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मींस जैसे ग्लोबलाइज्ड कर देना मींस आपकी किसी सर्विस की जो मतलब इंटेंसिटी है या जो जितने लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर उसमें इंक्रीज होना या एंटरप्राइज का enlargement होना। Okay. Yes, Narayan and Rishabh. Krishna. Yes, Krishna. यस सर। सर मैंने पहली बार टर्म सुनी है, पर सर जितना भी समझ आया सर, मानस और अर्णव से, सर ग्लोबलाइजेशन शायद सर हम कह सकते हैं ऐसी टर्म है, मतलब अपने एसेट्स या फिर रिसोर्सेस को पूरे वर्ल्ड को यानी ग्लोबलाइज करना है, यानी सब उसे यूज कर सकते हैं। सब उसको यूज कर सकते हैं। ओके। सर मेरा इसमें डाउट है सर, क्या अमेजोन को हम ग्लोबलाइज हो गया है वो, सर ये कह सकते हैं हम? अमेजॉन कहाँ की कंपनी है? Sir, America. सर मे USA. बी अमेरिका। USA. So globalization, what you can do, you can trade throughout the globe. You can make investment throughout the globe, and people also have a access or a freedom to move from one country to another. So do you think that Amazon did it? Means Amazon is a multinational company working in America as well as in India. Is it so? सर कैसे मतलब सेंटर इंडिया में भी हूँ? Yes. Do it means
do you know this, that it has its center or an office in India also? Yes, sir. So if it has, then it means it is a multinational company and utilizing the very concept of globalization. ग्लोबलाइजेशन में होता क्या Okay, है sir. कि हम ग्लोबलाइजेशन एक जो है एक स्ट्रक्चर की काइंड ऑफ थिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इट प्रोवाइड्स it facilitates rather, right, a way through which different countries come across with each other. There is an interconnectivity among different countries through which we can see flow of trade, capital, and people, or movement of people rather, or you can say migrant. सर मतलब ना और ट्रेडिंग के लिए और ज्यादा चीजें चाहिए सर उसके लिए. ठीक है, अभी तो अब ये शुरू हुआ नहीं है, अभी तो बस मैंने बस पूछा है. तो आई होप योर overall doubt will be resolved when I will discuss it thoroughly. So I would like to hear from Narayan also. Yes, what Narayan is saying, what he knows about it, and Krish Sharma. Yes, sir. Sir, we can Yes. say globalization is a thing in which one country has something which is shared among different countries. Means a thing in one country is also available in other countries. The thing is made globally available, and so we can call this thing as globalization. Okay, Krish Sharma, you want to add something in this? So if we can say globalization is the global interaction between various countries by means of trade, services, goods, etc. Okay, and etc. what? Sir, I don't know. Okay, so I hope that you all have a book right now in front of you, right? Yes, sir. Yes, sir. So let me open my notebook, right? And I hope my notebook is visible to all of you. सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. Okay, just wait for a while. Okay, sir. Now I hope that is it. It is, right? Yes, sir. Yes, sir. So the name of the chapter is The Making of a Global World. Right, the making of a global world. The making of a global world means, though we are discussing globalization over here, the overall concept in this chapter you will come across is that how this global world, the trade, the movement of the flow of capital, the movement of people has originated. Do it is a new concept or it prevails earlier also, right? तो हम लोग यही सब पढ़ेंगे, यही सब जानेंगे. एंड बिफोर आई गो अहेड विद दिस चैप्टर, मुझे आप लोगों से ये बात बतानी है कि that this chapter is a lengthier one. You will find a lot of facts and figures, and important for your board examination as well as for your competition. Yesterday, NTSC second stage examination took place, right? And if you are curious to crack NTSC examination, go through the paper. When you will go through the paper, you will realize that what sort of question, what kind of question will be asked in at NTSC second level, at stage 2, right? Whether you are prepared yourself, whether you are preparing yourself rather in that manner or not. If you are able to solve a maximum number of questions from social science or from any particular subject, then it means that you are going in the right direction. But at the same time, if you are not being able to solve the questions, then you need to put more efforts, right, in order to crack this examination. सर मतलब सेटअप उसका देखना है ना, स्ट्रक्चर. The overall pattern of questions which are being asked at NTSC second stage, right? The ultimate goal, though we have two goals over here, that first stage as well as second stage, it is a very important for you to crack first stage,
right? So prepare yourself thoroughly for the second stage. It will be a good we can say a way for cracking NTSC examination, because whatever those who are in those who are in Delhi, particularly for them, right? Because there is a change in UP, so that's why I'm saying this. So you people, those who are living in Delhi, you have a one plus point that your syllabus is almost same for first stage as well as second stage, because Delhi government follows NCERT, right? So Delhi government will ask from NCERT only. And at the second stage, as NCERT conducts this examination, and NCERT will definitely look into NCERT, not beyond that. सर मेरा डाउट है सर So मॉड्यूल listen first of all, whatever I am speaking, just listen out, then speak. सॉरी सर What you need to do, you need to go through your NCERT, right, properly, look at each and every word, right? And you need to make an analysis of what you all are studying over here. If you will develop that kind of way of studying, then you will be definitely able to crack this examination, because at second stage there are only few students who crack this examination. There are very few students. Means the overall cutoff means I don't what I can recall right now is around 150 or below 150. So out of 200, below 150, you can understand the kind of question they ask in an examination. So Yes, for NCERT, for social science particularly, you need to take care of your 9th, 10th thoroughly, right? So when you crack your first stage, whether you are from Delhi or from UP or from any other state, the second stage will be conducted by NCERT, and your NCERT must be completed thoroughly, right? Now Yes, sir. let us start this. Yes, you were asking some question. Means you had a doubt, I think, Krishna. यस सर सर मेरा डाउट था सर जो मॉड्यूल है सर केल्विन का सर उसमें सब कुछ नहीं है ना एनसीईआरटी वाला You need to check it out, right? Because I have to look after that. But I think that it is okay, right? मतलब हम उससे पढ़ सकते हैं एनटीएससी की तैयारी के लिए Yes, you can prepare from that module and from NCERT. क्योंकि उसमें थोड़ा डाटा अलग दिया हुआ है ना So you need to upgrade yourself. If data is a past one, means a older one, then you need to download NCERT from website which has been released by the NCERT itself. So go through that data. ओके सर Right. Now, the making of a global world. Is that clear? My message is clear to all of you? यस सर Now, so when we talk about globalization, the very first thing which must be written in a book, that globalization we understand in this way that this is something a new phenomena. हम ऐसे समझते हैं कि ये कोई नया फिनोमिना है ग्लोबलाइजेशन, और ये जो है कि अराउंड 1950s में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट हुआ है, 1940s 50s में ऐसे कह दिया जाए, राइट? बिकॉज 1945 एंड ऑनवर्ड्स जो है कि इस पे काम होना शुरू हो गया था. बट this is not true. Globalization is not a new phenomenon, though it is it has its newer form. एक नया फॉर्म में देखा जा रहा है, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन जैसे मैंने बताया, you will find flow of capital. कैपिटल का फ्लो होगा, right? Then trade, and then movement of people or migrants. ये 3 चीजें ग्लोबलाइजेशन में देखी जाती हैं सबसे ज्यादा. Right. So when you go through the globalization overall concept, these 3 will play a very crucial part, and you will find that different countries across the globe were trying to maximize their trade. And this is not true today or in today's era or last 50 years. It is true since time immemorial. ये अभी का नई बात नहीं है, पुराने से जो है ऐसा हो रहा है और ऐसा चला आ रहा है, ठीक है? बट वो तरीका उतना ज़्यादा जो है एडवांस्ड नहीं था, ठीक है? अभी हम कैसे कह सकते हैं? यू मस्ट हैव स्टडीड इंडिया साइज एंड लोकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव. नाउ आई एम गिविंग यू डेटा. सो इंडिया साइज एंड लोकेशन जब आपने पढ़ा, यू मस्ट हैव वेंट थ्रू द कॉन्सेप्ट दैट इंडिया
land route is much older than sea route. Yes, sir. Yes, sir. और वहां से नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से थ्रू डिफरेंट पासेस ट्रेडर यूज टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. मुस्लिन, स्पाइसेस, राइट? आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं? Yes, That sir. Panchatantra Yes, sir. and Ramayana, these all moved from one place to another, and we got many things from other countries also at the same time. So अगर लोग मूव कर रहे हैं तो भी वही बात है, ट्रेड कर रहे हैं, गो यहाँ से मुस्लिम खरीद रहे हैं, जाके वहां बेच रहे हैं, तो ट्रेड हो रहा है. कैपिटल अब ये देखा जा रहा है, दिस इज समथिंग, ठीक है, जो कि उस समय बहुत ज्यादा तो नहीं था, बट यस जो है कि क्या किया जाता था, पैसे लगा के लोगों से कहा जाता था कि भाई आप हमारे लिए काम करिए, ये पैसा आपको जो है कि उस जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है, ठीक है. तो ये आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, ठीक है, उसने धीरे धीरे ये प्रचलन भी शुरू किया था, कैपिटल का फ्लो भी होना शुरू हो गया था, ठीक. और फिर आपको ये भी याद होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड इन हिस्ट्री दैट बिफोर बैटल ऑफ बक्सर, राइट, वी यूज्ड टू हैव अ गुड ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज, right? We used to Yes, have sir. Yes, good sir. trade with European countries. So European countries से good trade होता था, and what we used to get from out of that, जब अच्छा trade होता था तो we used to get gold and silver metals, ठीक है, हमें gold और silver के metals मिला करते थे, right? कहाँ से? यूरोप से. ठीक है, आई थिंक मुझे अब इसे डिलीट करना पड़ेगा. So are you getting this? This is a rough map actually, not a real one. Yes, sir. Yes, sir. You can understand in this way कि आपका ऑस्ट्रेलिया, this one is your अंटार्कटिका इंटरनेशनल रिसोर्स है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यूरोप में, इंग्लैंड, यूरोप से क्या होता था? ट्रेड होता था इंडिया में, ठीक है. अब यूरोपियंस यहाँ पे आते थे इंडिया में, विच रूट दे यूज्ड टू अडॉप्ट? दे यूज्ड टू अडॉप्ट दिस रूट. इसको क्या, कौन सा रूट कहते हैं? सर जो केप ऑफ गुड होप से जाता है. वेरी गुड, केप ऑफ Good hopes. गुड होप, केप ऑफ गुड होप. बट ये लंबा रूट था, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ से एक रूट डेवलप हो गया. क्या नाम है इस रूट का? Sir, Suez Canal. स्विस कैनाल. विद द हेल्प ऑफ स्विस कैनाल. कब ये ओपन हुआ था? 1869, ठीक है. Yes, द yes, डिस्टेंस sir. बिटवीन, यू नो, द डिस्टेंस रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर. ये भी पढ़ा है, ठीक है. अब यूरोप से क्या होता था, यहाँ के यूरोपियंस जो है हैंडीक्राफ्ट जो बनते थे यहाँ पे, ठीक है, उसके जो है कि दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ दैट, यू नो, गुड्स. एंड अब इंडिया को क्या चाहिए होता था यूरोप से? यूरोप से इंडिया को कुछ नहीं चाहिए होता था लगभग, ठीक है. मीन्स यूरोप को ज्यादा चाहिए होता था और इंडिया को कम, ठीक है, क्योंकि देयर वाज अ सेल्फ सफिशिएंसी, उतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी चीजों की. एंड दिस वाज ट्रू इन केस ऑफ चाइना आल्सो. चाइना भी इसी तरीके से था, उनको भी कुछ Sir, resource थे. ठीक है. इंडिया के पास भी ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने सेल्फ सफिशिएंसी उनके पास थी, उतने ज्यादा डिमांड थी नहीं चीजों की. तो अब ये ट्रेड जो होता था, इसको जो है कि कैसे कैरी ऑन किया जाए. यूरोपियंस वेयर, यू नो, दे वर वेरी कॉशियस, दे वर वेरी क्यूरियस टू नो दिस, व्हाट वी शुड सेल इन इंडिया. तो क्यों? क्योंकि दे यूज्ड टू गिव सिल्वर एंड गोल्ड और मेटल्स, ठीक है. सिल्वर और गोल्ड यहाँ इंडिया में आते चले जा रहा है, चाइना में जा रहा है. तो अब इस ट्रेड को जो है कि बैलेंस करने के लिए डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज विल कम एंड दे विल सेटल देमसेल्फ इन इंडिया. आपने पढ़ा होगा, डच आते हैं, पोर्टुगीज आते हैं, राइट, फ्रेंच पीपल आते हैं, देन इंग्लिश पीपल आते हैं. दे ऑल केम ओवर हियर एंड दे सेटल्ड देमसेल्फ ओवर हियर. Yes, और sir. जो है कि इससे पहले, अच्छा, ये जो बात हो रही थी 50 इयर्स की बात जो हो रही थी अभी, तो 50 ईयर से पुराना है, ठीक है. लोग जो है ये मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है. किस लिए? पर्पस क्या था मूव का? वर्क, सर्च ऑफ वर्क. Sir, work.
सर इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा था ना सर, वहीं पे ठीक है, स्लेव सर्च ऑफ वर्क था, लिसन, सर्च ऑफ वर्क था लोगों के अंदर, ट्रेड था, वही इन्हीं तीनों पॉइंट को एक्सपैंड करके आप समझो, ठीक है। और लोग इसके अलावा, क्या और भी कुछ चीजें थी, कैपिटल भी था, इसके अलावा भी कुछ और चीजें थी। यस, पीपल यूज टू मूव, ठीक है, फॉर देयर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है, दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग जो है कि दंड से बचने के लिए, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए भाग जाते थे देश छोड़ के, ठीक है। तो सर परसिक्यूशन मतलब? हाँ, प्रोसिक्यूशन मतलब कि पनिशमेंट, ठीक है, इससे बचने के लिए भी लोग मूव करते थे फ्रॉम देयर कंट्री टू अदर कंट्री। तो लोगों का मूवमेंट पहले भी था, और इसके साथ साथ व्हेन अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? दे यूज टू टेक आउट, they used to take with themselves their tradition, their culture, right? Even the germs लेके जाते हैं। Yes, sir. सर क्या इसी कारण से सर एशिया में सर बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस है? ठीक है, तो कल्चर, ट्रेडिशन, जर्म्स, ये सब लेके क्या करते हैं, जाते थे। ट्रेडिशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया इज अ पैच वर्क एक्चुअली, ठीक है। इंडिया इज इंडिया टुडे, वी नो दिस। देयर आर डिफरेंट पैच वर्क व्हिच हैव बीन मेड आउट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और जब हम वो पढ़ेंगे तो समझेंगे। जरूरी नहीं है कि यही कारण सिर्फ रहा है। अलग अलग जगहों को जोड़ के इंडिया अगर बन गया, इंडिया इज इंडिया, तो वहां पे अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर पनपा। और एक ये भी कारण, इस कारण को भी पूरी तरीके से आप जो है कि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस कारण को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता आज के डेट में, ठीक है। कहा जाता था पहले द्रविडियंस थे, फिर आर्यन आए, फिर इस्लाम्स आए, फिर उसके बाद कन्फ्यूजियंस आए, ठीक है, अलग अलग लोग आए। इवन फिर यहाँ पे बुद्धिज्म जन्मा, यहाँ पे जैनिज्म आए, जोरास्ट्रियंस आए, ठीक है। ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। तो अब वो सब जब आए तो उनका अपना जो है कि मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म तो यहीं से बन पाया। और बुद्धिज्म तो आप जानते हो कि साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल किया, श्रीलंका में ट्रैवल, चाइना में ट्रैवल हुआ, ठीक है। आप जानते हो जापान में ट्रैवल हुआ। बुद्धिज्म एक ग्लोबल टर्म है, आप जानते हो, बुद्धिस्ट, there are many Buddhist monasteries across the globe, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हमने सब, यहाँ तक जो पढ़ा है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। Anyone has any doubt? तो लोग अपने साथ साथ अपना पैसा, अपना स्किल, अपना इन्वेंशन, जर्म्स, इवन जर्म्स का, अच्छा जर्म्स की अगर बात की जाए तो पीपल क्या करते थे, अपने साथ जाते थे, जर्म्स भी लेके जाते थे। आज के डेट में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज अ ट्रूथ ऑफ द सेंचुरी, right? People are moving from one place to another and we cannot stop them merely saying that you are from such that country and that country has a record of different germs, ठीक है। अफ्रीका पर्टिकुलरली, अब चाहे वो ईबोला हो, चाहे नीपा हो, ठीक है, चाहे जीका वायरस हो, ये सब वायरस है। सर इंडिया ने सर जो है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया में आज के डेट में अगर सोचो, थिंक ऑफ दैट पीरियड, ठीक है, जब कोरोना वायरस के बारे में इतना जो है कि लोग डिस्कस कर रहे थे, जब एकदम इमरजेंसी में, मतलब जब शुरुआत हुई थी। अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होता, जब अगर जो है लोग मूव नहीं किए होते एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो क्या ये जंप फैलता? No, sir. नो सर। बहुत बहुत कम चांसेस थे, नेग्लिजिबल चांसेस थे, बट ये फैला किस लिए? व्हाट वाज द रूट रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? द मेन रीजन इज ग्लोबलाइजेशन। सो एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, ग्लोबलाइजेशन का भी है, और उसमें ये सबसे बड़ा एग्जांपल आपका जर्म्स का मूवमेंट है, डिजीज का। सर मेरा डाउट है सर, यूरोप में सर कुछ टाइम के लिए सर ब्लैक डेथ नाम की सर बीमारी फैली थी, तब सर क्या इंडिया ने ट्रेड करना बंद कर दिया था, ग्लोबलाइजेशन बंद हो गया था? क्योंकि सर वो इंडिया में तो मैंने सर सुना नहीं। कौन से पीरियड में ये था? सर 1670s ही था शायद 16? सर, 60s या 70s में ही हुआ था शायद। तो उसको पहले क्लियर करो कि ब्लैक डेथ कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था,
अमेरिका में हुआ था कि अफ्रीका में हुआ था? ठीक है, पहले यस इसको सर। क्लियर तो करो कि ये कहाँ पे है, यूरोप में है, अफ्रीका में सर है, यूरोप में है। कि अमेरिका में है? सर यूरोप में था सर, 3 बार शायद सब वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। क्या क्या था ये प्लेग? सर सर ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि सर अंदर बंद कर देते थे लोगों को और फिर मार देते थे या लोगों को, जिससे फैले ना ये वायरस। सर इतना खतरनाक था ये। हाँ, एक बहुत बड़ा जो है कि इशू था ये, इसको बुबोनिक प्लेग कहते हैं। ठीक है, क्या था ये? बुबोनिक प्लेग, जो कि मोस्टली रैट्स के थ्रू कहा जाता था ये फैल रहा है। ओके सर। ठीक है, तो इंडिया में उसका खास इफेक्ट नहीं था क्योंकि ये ज्यादातर केस यूरोप और अफ्रीका का था। ठीक है, चलो, बाकी आप लोगों को क्लियर है ये पॉइंट जो अभी तक मैंने डिस्कस किया? यस सर। Yes, sir. बाकी Yes, sir. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम, आफ्टर दिस हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? सर जर्म्स वाले में सर, हाँ, हाउ जर्म्स के बारे में। इबोला वगैरह अब फैलता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, आप देखो कि कौड़ी पहले इस्तेमाल होता था। ठीक है, कौड़ी भी जो है कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका मूव किया करेंसी, सी शेल्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, चाइना भी जा गया वो। तो इसी तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस पहले भी था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो आपको जो है सिल्क रूट के बारे में जानना होगा। ठीक है, किसके बारे में? सिल्क रूट। तो सिल्क रूट आज के डेट में क्या सिल्क रूट एग्जिस्ट करता है? देन द आंसर इज यस। चाइना, इंडिया और चाइना, दे यूज्ड टू बी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड यूज्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, यहीं से हुआ करते थे। ठीक है, दे वर मास्टर राइट इन ट्रेड। तो चाइना पर्टिकुलरली वाज अ वेरी बिग कंट्री। ठीक है, तो चाइना के अगर आप देखो तो चाइना में लगभग बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं चाइना में भी, और इसने चाइना ने सिल्क रूट बना लिया था। सिल्क रूट मीन्स द रूट विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना एंड गोइंग आउट और लिंकिंग आउट डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ये वेल कनेक्टेड था, आज भी है। ठीक है, थ्रू द नेम हैज बीन चेंज्ड, वन बेल्ट वन रोड, OBOR और BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो यह अभी भी चाइना क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एनहांस कर रहा है। यू नो, if you want to develop your primary sector or secondary sector, then you need to have a developed tertiary sector, and transportation is a part of tertiary sector. पढ़ा है ये बात आपने, राइट? सो दैट्स व्हाई यस सर। चाइना वाज वेरी क्यूरियस टू यू नो टू एनहांस इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और चाइना से कई सारे गुड्स, जिसको कार्गोस कहा गया है, कई सारे गुड्स जो है कि अफ्रीका जाते थे, एशिया, वेस्ट एशिया में जाता था, यूरोप में जाता था, राइट? तो चाइना एंड इंडिया यूज्ड टू बी अ मास्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 15th सेंचुरी, चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? उसको लगा कि बाहर से लोग आके हमारे यहाँ जो है चाइना में स्टैब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को क्या कर देंगे? डिमिनिश्ड कर देंगे। ठीक है, इट विल अफेक्ट आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर, और अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। मतलब ट्रेड से अब उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। अब बचा फिर कौन? इंडिया। सो इंडिया में अब उतनी जो है कि इंडिया अकेला पड़ जाता है और उतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है जितना कि चाइना के पास है। तो अब यूरोपियंस वन बाय वन करके इंडिया आने लगे और इंडिया से जो रिक्वायरमेंट उनकी होती थी उसको फुलफिल करने लगे। एंड इस 16th सेंचुरी में भी आप में ही पढ़ोगे कि 16th सेंचुरी में जो है कि एक कॉन्टिनेंट का खोज हुआ जिसको आज के डेट में कहा जाता है अमेरिका। क्या कहा जाता है बच्चों? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज हो गई, किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। वेरी, क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की। सो अमेरिका की जब खोज हुई तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिले, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और जब बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ मिलते हैं, देन पीपल फ्रॉम यूरोप, राइट, दे यूज्ड टू कम एंड दे हैव सेटल्ड देमसेल्फ इन अमेरिका। अमेरिका में रहने वाले कौन थे? नेटिव कौन है? अमेरिकन इंडियंस। कौन है?
अमेरिकन इंडियंस जो वहां के नेटिव थे उनको हटा के वेस्ट की तरफ ढकेल दिया गया, और आके कौन बच गए? सब यूरोपियंस, स्पेनिश, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, दे केम एंड दे सेटल्ड ओवर हियर, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रुथ। और फिर उन्होंने देखा कि जब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, देन they got to know that there is an enormous potential in this region, and subsequently when China isolated itself from the rest of the world, America grew as a world, you know, as a place of world trade. Yes, sir. ठीक है। So, and in this world trade, you will find Europe is in the middle. Europe had, Europeans, they acquired a lot of wealth out of this because they were the people who encroached the area of America. Right? Is it clear to all of Yes, sir. whatever I have taught you? Yes, sir. सभी को क्लियर है? सर एक Yes, sir. हाँ बोलो। सर यूरोप का हम वर्ल्ड ट्रेड में लीडिंग रोल केवल इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी हुआ था और उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस थी, या फिर सर कोई और रीजन है? सो यूरोपियन का पर्टिकुलरली जब इस बात को कह रहे हो तो आपको ब्रिटेन कहना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जब आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश जो है कि ज़्यादा प्रॉस्पर हुए, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जब वो इंग्लिश प्रॉस्पर हुए तो उन्होंने स्कॉटलैंड, वेल्स और इन सबको इनकॉर्पोरेट करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया, नॉर्दर्न आयरलैंड। सो उनकी पावर जो है बढ़ती गई। अब ब्रिटेन के साथ साथ स्पेनिश पीपल की भी पावर बढ़ रही थी, स्पेनिश पीपल और फिर आपके पोर्टुगीज, इन लोग ये भी पावरफुल कंट्रीज थे, ठीक है। अब ब्रिटेन की पावर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा कैसे बढ़ी, तो उसका आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। लॉट ऑफ कैपिटलिस्ट वर देयर इन यूरोप। अभी हम लोग ये सब एक एक चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड वी विल कम अक्रॉस द फैक्ट कि दोज इंडस्ट्रीज व्हिच वर स्टार्टेड इन इंग्लैंड, राइट, इन ब्रिटेन, राइट, दे रिक्वायर लॉट ऑफ रॉ मटेरियल। उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। फ्रॉम वेयर दे विल गेट दिस रॉ मटेरियल? दे विल गेट दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, right? They will get this raw material from America, they will get this raw material from Australia, they will get this raw material from New Zealand, right? Yes, sir. ओके सर, यस Sir, sir, और slave फिर कब बना इसके दिया बाद था? end product, when they will manufacture those raw material, they will produce end product, right? And they will sell out the end product throughout the globe. They will try to sell out the end product throughout the globe, and this is what we studied in case of India. That when they established themselves in India, they brought out policies which encouraged import rather than export. And you must have studied this in nationalism in India, that how industrialists wanted to reduce import and to increase export, and that's why they supported civil disobedience movement. Yes, sir. Yes, Right? sir. यस सर। सर, जो ये सर आप अमेरिका बता रहे हो सर, इसी के आसपास शायद सर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था ना हाँ हाँ। सर? फिर एसेट्स को कैसे यूज करते थे? मतलब सर इन्वेंशंस होती थी तो सर ब्रिटेन के नाम से होती थी वो? क्या कैसे हैं इन्वेंशंस? सर मतलब इस टाइम पे जो इन्वेंशन होते होंगे सर, मैंने सर पढ़ा था सर, बॉस्टन टी पार्टी के शायद टाइम पे इंडिपेंडेंस हुई थी इनकी। कब Yes, हुआ sir. था ये बॉस्टन टी पार्टी? सर अभी डेट तो नहीं पता सर। चलो और बोलो। तो अमेरिका इंडिपेंडेंट बनता है इन द ईयर 1776, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वही बॉस्टन टी पार्टी जो आप कह रहे हैं। तो अब ये इंडिपेंडेंस किससे मिला? टू whom, with whom they were fighting? They were fighting with Britain. Britain, yes, sir. फ्रांस ने हेल्प की थी। और फ्रांस ने हेल्प की। Yes, sir. Yes, sir. Great economy. ठीक है, तो ठीक है, चलो अभी जो मैंने अभी तक जो समझाया है वो समझो, क्या वो सारी चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद जो ये तुमने बताया इन्वेंशन का जो पेटेंट राइट है, ठीक है, ये पेटेंट राइट समय के साथ साथ आता गया, ठीक है, कि अगर हम कुछ इन्वेंट करेंगे तो वो हमारा उसमें पेटेंट राइट होगा और कोई उस तरीके का नहीं बना पाएगा।
राइट। तो चलो Yes, sir. अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिखा है, क्या हमें समझना है। तो हमने सिल्क रूट के बारे में समझा, ठीक है, सिल्क रूट कैसे यहाँ से गुड्स मूव कर रहे हैं चाइना से टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब जगहों पे, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा ये ट्रेड इस पे होता था, ठीक है, इस सिल्क रूट पे। तो चाहे चाइनीज की पॉटरीज हो, चाहे टेक्सटाइल हो, सब कुछ मूव कर रहा है इन दिस वे एंड इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो Yes, sir. ट्रेड और कल्चर दोनों साथ साथ क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद इंडिया में क्या था, इंडिया में जो है कि अगर कल्चर की बात की जाए, ट्रेड की बात, ट्रेड तो हमने समझ ही लिया है, कल्चर की बात की जाए तो जो बुद्धिज्म है वो क्या हुआ है, वो स्प्रेड हुआ है फ्रॉम इंडिया। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है फूड के बारे में, ठीक है। फूड क्या है, फूड आज के डेट में जो हम खाते हैं, क्या इसका ओरिजिन प्लेस यही इंडिया ही है? जैसे फॉर टुडे वी ईट टोमेटो, पोटैटो, ठीक है, टोमेटो खा लिए, पोटैटो खा लिए, और एनी अदर थिंग, मेज, Sir, we ग्राउंड नट। सबसे ज्यादा ग्राउंड नट इंडिया में उगाया जाता है, पढ़ा है ग्राउंड नट, ऑयल सीड्स वगैरह पढ़ा है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Agriculture. Sir, major oil seed है. Some major pulses हमारे यहाँ. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आज के डेट में हम खाते हैं, तो ये क्या इसका ओरिजिन यहाँ पे है? द आंसर इज परहैप्स नो। एक्चुअली नो वन नोज, बट द मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन इज दैट इट इज नो, राइट। तो फूड का भी ट्रैवल हुआ, सिंस यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो यू मस्ट बी टेकिंग विथ योरसेल्फ द फूड विच यू ईट, विच यू प्रेफर टू ईट, ठीक है। तो यहाँ पे जब सपोज इंडिया में कई सारे लोग आए, तो दे ब्रॉट आउट द फूड्स विच दे यूज्ड टू ईट, और वो जब यहाँ पे आए तो यहाँ की जमीनों में लगाया, ठीक है, और यहाँ पे जमीनों में लगाया तो वो क्या हुआ, ग्रो होता गया। और उसी को जो है कि जब देखा गया कि अच्छा टेस्ट है, अच्छा इसका भी एनर्जी है, तो वो उसका ज्यादा से ज्यादा फिर सोइंग होने लगा। इसी तरीके से माना जाता है कि जो चाइना में ओरिजिन है नूडल्स का, कहा जाता है, परहैप्स नो वन नोज, ठीक है, इट इज बिलीव्ड कि जो नूडल्स का ओरिजिन है वो चाइना में है, और वही इटली में जाके, यूरोप में जाके क्या बन जाता है, स्पैगेटी बन जाता है। आप जानते हो स्पैगेटी, पास्ता के जैसा कुछ होता है स्पैगेटी, यस सर। राइट। तो इसी तरीके से फूड का भी क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सबसे बड़ा आविष्कार, तो मतलब सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो कि अमेजिंग थिंग जो कि अब यूरोपियंस को मिला, वो था आपका पोटैटो, ठीक है। क्या मिला, पोटैटो, ठीक है। पर्टिकुलरली हम एक केस पढ़ेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में। किसके बारे में, नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ पे पोटैटो बहुत ग्रू करने लगा। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्च होता है, Yes, sir. वो स्टार्च जो है कि आपके टंग में जाते ही, आपके माउथ में जाते ही वो जो है कि डाइजेस्ट होने लगता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो स्टार्च के जो है, इस पोटैटो की वजह से स्टार्वेशन जो है कि यूरोप में रिड्यूस हो गई, और ये भी देखा गया कि इसका इतना ज्यादा रिलेवेंस हो गया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया कि 1845 से 49 के बीच में, 45 से लेके 49 के बीच में, एक बार जब पोटैटो की क्रॉप खराब हो गई थी, ठीक है, तो कई सारे लोग मर गए थे। 100 of thousands died out of starvation, ठीक है, many people died, ठीक है, due to starvation, ठीक है। Is it clear to all of you? Yes, sir. आप सभी को क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो? चलो, नो सर। No, sir. ओके। तो रीडिंग करें या फिर आगे मैं पढ़ाता रहूं? सर रीडिंग कर लेते हैं मेरे ख्याल से। रीडिंग कर लेते हैं, यस, क्योंकि इसके साथ साथ रीडिंग भी बहुत जरूरी Yes, है। sir.
फिर हम थोड़ा आगे निकल जाएंगे, फिर पुराना रिवाइज कर पाएंगे. Yes, sir. Just wait for a second. Yes, sir. Is my screen is visible to all of you? Yes, sir. It is visible. Yes, Yes, sir. Wait करो. Who will read? Arnav. Yes, Yes. Arnav. Yes, sir. The making of a global world, the pre-modern world. When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. But as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history of trade, of migration, of people in search of work, the movement of capital, and much else. As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. All through history, human societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment, or to escape persecution. They carried goods, money, values, skills, ideas, inventions, and even, Underline. yes, sir, and even germs and diseases. As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilizations with present-day West Asia. For more than a millennia, cowries, the Hindi kauri or seashells used as a form of currency. Once it was asked in NDSA examination, what do you understand by Kaudi? And one of the option was seashell. Right. So do remember this. Okay, sir. From the Maldives found their way to China and East Africa. The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far as the 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. Yes. Sir, should I continue? Okay. Who is the next one? Manas. Yes, sir. Okay, so let's start. Manas, you don't know from where you have to start? Yes, sir, I know. 1.1 Silk routes link the world. The Silk routes are a good example of vibrant pre modern trade and cultural links between distant parts of the world. The name Silk routes point to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and northern Africa. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. But, Underline. but Chinese pottery also traveled the same route as did textiles and spices from India and Southeast Asia. In return, precious metals, gold and silver flowed from Europe to Asia. Trade and cultural exchange always went hand in hand. Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later.
Much before all this, Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points on the Silk routes. Okay, you may continue. Yes, sir. Food travels, spaghetti and potato. Okay, Food do one of- thing, underline all these facts also. Yes, sir. Food travels, spaghetti and potato. Food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled. Even ready foodstuff in distant parts of the world might share common origins. Take spaghetti and noodles. It is believed that noodles traveled west from China to become spaghetti, or perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy. Similar foods were also known in India and Japan. So, the truth about their origins may never be known. Yet, such guesswork suggests the possibilities of long distance cultural contact even in the pre modern world. Many of our common foods, such as potatoes, soya, Underline. groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on, were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent and would later become known as the Americas. यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को मैंने, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall I continue? Yes, completed. Yes, sir. Here we will use America to describe North America, South America, and the Caribbean. In fact, many of our common foods. अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि अगर तुमसे कोई कहता है कि कहाँ गए थे, तो अमेरिका, तो आप क्या समझते हो? Sir, USA. Sir, USA. Sir, क्यों? Northern America. USA. Sir, क्यों, ऐसा क्यों है? लोग जनरली सर यूएसए के लिए यूज करते हैं, सिर्फ अमेरिका. Sir, USA को generally लोग अमेरिका वो बोलते हैं. US अच्छा, Yes, sir. अगर कोई जो है कहे कि मैं जा रहा हूँ एशिया, तो तुम समझोगे कि वो इंडिया जा रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो अमेरिका के केस में तुम क्यों जो है कि अमेरिका पूरा कॉन्टिनेंट देखो ना, अमेरिका कॉन्टिनेंट ही तो डिवाइड हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन. तो कोई पूछे कि कहाँ, अगर कोई कहे कि हम अमेरिका जा रहे हैं, तो पूछो अमेरिका में कहाँ जा रहे हो भाई? साउथ अमेरिका जा रहे हो, ब्राजील, रियो दे जेनेरो जा रहे हो, मेक्सिको जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अर्जेंटीना जा रहे हो, राइट? कनाडा Yes, जा sir. रहे हो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो. In fact, many of our common foods came from America's original inhabitants, the American Indians. Sometimes the new crops could make the difference between life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of the ham Underline. and potato. This time, this question means a question from here was asked in NTSC examination. Yes, sir. Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when diseases destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. ठीक है. I hope this much is clear to all of you, right? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है. अब देखो. So what you will find over here कि भाई लोग मूव कर रहे हैं from one place to another. ठीक है, अलग अलग सबके पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग जो है कि कारणों से मूव कर रहे हैं. नाउ द टाइम हैज कम टू कॉन्क्वेस्ट. अब अमेरिका का जब डिस्कवर हुआ, देयर वाज एनॉर्मस पोटेंशियल. ठीक है, लोग जान गए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. स्पेनिश एंड पोर्टुगीज वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम एंड वेरी नियर बाई टू अमेरिका. ठीक है, तो दे थॉट ऑफ सबजुगेटिंग अमेरिका. ठीक है, दे थॉट ऑफ सबजुगेटिंग अमेरिका. अब सबजुगेशन जो करना है, तो अब वो क्या तरीका अपनाया जाए, उसके लिए तो फाइट करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी. ठीक है, तो वो लड़ाई लड़ेंगे. इसके अलावा हम ये अब इस बात को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं. इसके अलावा एक चीज और आप देखोगे कि आपने पढ़ा है जब ये स्विस कैनाल ओपन हो गया एंड दिस केप ऑफ गुड होप, तो इस कंट्री से और इस कंट्री से, मतलब दिस साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडिया एंड ऑल, तो यहाँ से क्या होता था? ट्रेड होता था, टू एंड फ्रो, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, दोनों काम. ठीक है, टू एंड फ्रो ट्रेड हुआ करता था और काफी ज्यादा बिजीएस्ट ट्रेड में जाना जाता था. इसके बाद यहाँ आगे और फर्दर चले जाओगे
तो यहाँ पे आपका सिंगापुर एंड ऑल है, ठीक है, आर्कियोप्लैगो है आपका, सुमात्रा, जावा एंड ऑल, बाली, फिर उसके बाद आपका यहाँ जापान है। तो यहाँ पे भी ट्रेड होता था। तो ट्रेड के लिए लोग क्या होते थे, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। एंड इंडियन ओशन was a very good example or was seen as the busiest route at that time. आज की डेट में भी होता है। You must have studied this again in India and the world. ठीक है कि Indian Ocean has a strategic position in India has a strategic position in Indian Ocean, that's why named as a strategic position, as well as the coastline of India is more in Indian Ocean than any other country, and hence the name of the ocean is Indian. राइट, पढ़ा है ऐसा कुछ? यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है, तो ट्रेड के लिए जाना, और इंडिया का अच्छा एक पोजीशन था यहाँ पे, तो ट्रेड में इसका एक सिग्निफिकेंट रोल हुआ करता था। लोग मूव करते थे फॉर द सेक ऑफ ट्रेड, तो जो है कि उनको बेनिफिट होता था, ठीक है। इंडियंस को पर्टिकुलरली बेनिफिट इन द सेंस कि ये कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो इनको रॉ मटेरियल के लिए जो है कि यहाँ जाना होता था, प्लस साथ ही साथ मार्केट भी था यहाँ पे। अपना सामान बना रहे हैं इंडस्ट्रीज, अगर वहाँ पे सामान बना रही है तो उसको बेचने की भी जो है उसको मार्केट चाहिए, ठीक है। तो इस रूट का इस्तेमाल किया जाता था और ये रूट बहुत फेमस रूट था। और इंडिया और चाइना, आपको मैंने बता ही दिया था कि क्या थे, वर्ल्ड ट्रेड में जाने जाते थे। वो तो 15th सेंचुरी के बाद से, अमेरिका की खोज के बाद से ही क्या हुआ, सेंटर चेंज हुआ है, अदरवाइज सेंटर तो यही था। यस तो सर। एक ये पॉइंट। फिर उसके बाद कॉन्क्वेस्ट की बात की जाए तो ट्रेड की बात हो गई। कॉन्क्वेस्ट की बात की जाए तो पोर्टुगीज और स्पेनिश, ठीक है, अटैक करते हैं अमेरिका पे, ठीक है, अमेरिका पे जाके सेटल्ड होते हैं। तो अब जब सेटलिंग के लिए क्या तरीका अपनाया, दे यूज्ड जर्म। किसका इस्तेमाल किया? जर्म। मारने की जरूरत नहीं है, गोली चलाने की जरूरत नहीं है, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस बीमारी फैला दो, खुद इम्यून रहो और दूसरे के बीमारी फैला दो, वो अपने आप मर जाएंगे। और जब वो जैसे ही वो मरते हैं, जाके उनके जमीनों पे क्या कर लो, कब्जा कर लो, ठीक है, और वहीं आराम से रहो। तुमको बीमारी नहीं होगी पर अगले को होगी, ठीक है। वो बीमारी उसका आपने तुम वैक्सीन लगवा ली, उसको जो है वैक्सीन लगा नहीं है, उसको फैला दो। तो एक सबसे बड़ा हथियार था, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल वॉर। क्या कहते हैं इसको? बायोलॉजिकल वॉर, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है, बिना किसी को मारे, बिना किसी को पीटे, आराम से क्या किया, कॉन्कर कर लिया। सर ये तो कब यहाँ हुई पे थी? स्पेनिश ने स्मॉल पॉक्स का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के जरिए इन्होंने क्या किया, लोगों को मार दिया। इट प्रूव टू बी अ किलर, अ डेडली किलर, ठीक है। पूरे कॉन्टिनेंट को सफा कर दिया। एक बार जब बस इंट्रोड्यूस हो जाए, उसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट साफ होता चला गया और वो अपने आप आगे बढ़ते चले गए। लोग डर के हमारे अपने सब क्या करते गए, अपनी जमीन को छोड़ के भागने लगे। इज दिस क्लियर? यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ। Yes, sir. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब इस समय, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई हैं, तो इंडस्ट्रीज आ गई हैं तो आपको याद होगा 1830 का जो टाइम पीरियड था, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट का टाइम था। Yes, sir. यस सर। हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट मतलब मशीन्स हैं यहाँ पे, देयर इज अ मास प्रोडक्शन, मशीन्स आर वर्किंग इन पब्लिक डोमेन, मास प्रोडक्शन हो रही है, मोर एंड मोर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो रही है, जो कि अलग अलग जगहों से चीपली खरीदी जा रही है। मास प्रोडक्शन के बाद मास कंजप्शन भी शुरू किया गया, हालांकि वो तो बाद में आता है, चलो इसको होल्ड करते हैं, मास कंजप्शन को भी। मास प्रोडक्शन किया गया। जब ये मास प्रोडक्शन हुआ तो जो लोग काम करते थे मैनुअल, ठीक है, उनको क्या होना पड़ा, उनको ये मशीन्स रिप्लेस कर देती हैं। क्या कर देती हैं? रिप्लेस। अब जो मैनुअल काम करते थे वो क्या बन गए? अनएम्प्लॉयड। क्या बन गए? अनएम्प्लॉयड, Unemployed. ठीक है। अब अनएम्प्लॉयड अगर होंगे तो सोशल अनरेस्ट फैलने की चांसेस क्या होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कि बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके साथ साथ अगर कोई अपने रिलीजन को नहीं फॉलो करता है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, तो उसको भी सीरियसली लिया जाता था। उनको क्या किया जाता था? उनको पनिश कर दिया जाता था।
तो हुआ क्या, मेनी ऑफ द यूरोपियंस, क्योंकि यूरोप में ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी, इंडस्ट्रीज में लोग जा रहे थे काम करने, ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको काम नहीं मिल पाता था। आपने जब पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा है ना, ज्योग्राफी लास्ट यस चैप्टर, सर। सो देयर इज अ पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, ये भी पढ़ा है आपने? पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अर्णव? सर ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। सर नहीं पढ़ा था सर। अरे ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बाद पॉपुलेशन नहीं पढ़ा है? सर सर ने एक क्लास में सर खत्म कराया था जितना याद है सर, अच्छे से नहीं हुआ था वो चैप्टर सर, कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब शायद 1-2 पेज ही हुए थे। पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर गांव में, गांव से क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा, और अर्बन एरिया में क्या होगा, पुल होगा, ठीक है। तो गांव से पुश किया जाएगा, गो एंड लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। पुल फैक्टर अर्बन एरियाज क्या करेगा, विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड मेनी पीपल विल कम एंड रिसाइड, ठीक है। तो चलो समझते हैं यहाँ पे क्या है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। तो लोग आएंगे शहरों में रहने, इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, काम करने आएंगे, और जब वो काम करने आएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि सबको नौकरी मिल जाएगी। तो जिनको नौकरी जिनको मिल जाती हो तो ठीक, जिनको नहीं मिलती हो छोटे मोटे ऑड जॉब्स करके क्या बनाते हैं, स्लम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्लम्स। दे क्रिएट स्लम्स एंड दे लिव ओवर देयर। अब यहाँ पे यूरोप में क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, तो लोगों को लगा कि इन ऑर्डर टू सस्टेन द लाइवलीहुड, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजन के जो है परसिक्यूशंस हो रहे हैं, तो हाउ टू मेंटेन द ओवरऑल लाइवलीहुड, हाउ टू सस्टेन इन दिस क्रूशियल पीरियड, मेनी ऑफ यूरोपियंस फ्लेड टू अमेरिका, ठीक है। कहाँ चले गए, अमेरिका में। Even you must have studied this in your previous class, French Revolution, during French Revolution, that there used to be a slave trade. Slave trade भी हुआ करता था, Yes, sir. Yes, sir. a triangular Yes, sir. slave trade, ठीक है, between America, body Atlantis, America body empty, sir. right? Europe. So there used to be slave trade. Many Africans went to America, right, as a slaves, and they settled themselves over there. राइट। अभी आपको डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जब मैंने पढ़ाया तो 1964 का कुछ एक टाइम पीरियड मैंने पढ़ाया होगा आपको, क्या था 1964 में डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी? स्मिथ का बारे में पढ़ाया है ना? कुछ सर जो ओलंपिक वाला था। हाँ, कुछ मूवमेंट जो है अमेरिका में हुआ था। यस सर। क्या नाम था उसका? सर वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सपोर्ट किया था, और सर वो सिविल मूवमेंट था एक, सर। सिविल राइट मूवमेंट। यस सर। टाइम पीरियड क्या था सर? 58 to 64। 58 to 64, यही है? यस सर। यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे हमने इतने सारी बातों को समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को देखते हैं कि जो चाइना है वो अपने आप को आइसोलेट किया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और कारण ये था कि वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो है ग्लोबलाइजेशन थोड़ा और बढ़ रहा था, ट्रेडर्स का मूवमेंट बढ़ रहा था, और उसको ऐसा डर लगता है कि उसका ट्रेडिशन एंड कल्चर खतरे में हो जाएगा। तो वो जो जब वो अपने आप को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ट्रेड जो है वर्ल्ड का वो ईस्ट की तरफ न जाकर वेस्ट की तरफ जाने लगा है, ठीक है। और यूरोप उसमें मिडिल में आता था, और वर्ल्ड ट्रेड में फिर उसको क्या किया जाता था, देखा जाता था, ठीक है। अब इसके बाद we will start the period of 1815 and 1914। अब ये 1815 और 1914 के बीच में हुआ क्या, इसमें आपने पढ़ा कि बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, ठीक है, और इसमें आपने पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ। अब इसके बीच में जुलाई रेवोल्यूशन आ रहा है, कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आ रहा है, या आर्म्ड रेवोल्यूशन इन पोलैंड हो रहा है, या रोमांटिसिज्म
जो है बढ़ रहा है, या हंगेरियन को और मोर ऑटोनॉमी मिल रही है, या फिर बाल्कन स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सर यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा है, या इटली का यूनिफिकेशन हो रहा है, गैरिबल्डी का क्या रोल है, मैजनी का क्या रोल है, ये सब आपको याद होगा। यस सर, Yes, इंपीरियलिज्म sir. भी होता है। इम्पीरियलिज्म भी होता है, राइट, फिर बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट में। यस तो सर। अब इस दौरान, इसी टाइम पीरियड में जब इतना सब कुछ आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो आप इसमें आप यही सारी चीजें देखोगे, ठीक है। क्या क्या चीजों को आप देखोगे? आप देखोगे किस तरीके से पूरा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक है, ठीक है, जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, वो चेंज होता है। सर डिफरेंट एंगल से देखेंगे हम सारे इवेंट्स को एक साथ रख के ना। हाँ, ठीक है। ओके सर। और किस तरीके से एक नई इकोनॉमी ऑर्डर जो है शेप होती है, और फिर इन सब चीजों को एम्फेसिस करेंगे। चलो अब आई थिंक हमें रीडिंग कर लेनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए विद दिस, राइट। यस सर। यहाँ Yes, तक sir. सभी को समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? No, sir. No sir. चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस द रीडिंग पोर्शन। हु विल रीड नेक्स्ट? Krishna Sharma. Yes, Krishna Sharma was the Yes, next sir. one. Yes, Krishna, read it. Yes, sir. Conquest, disease, and trade. The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. For centuries before the Indian Ocean had known bus- a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc., crisscrossing its waters. The Indian subcontinent was centered to these flow of a cruel point in their network. The entry of Europeans helped expand or redirect some of these flow towards Europe. Before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. But from the Okay, one thing more I would like to make you aware of, that during this time period you will come across the fact that there is a place it is said to be, right, El Dorado, a city of gold. Gold. Okay, Yes. so many people, many legends in Europe, they used to say this कि अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, there is a place known as El Dorado, और वहां पे बहुत सोना है। सो बहुत सारा जो है, बहुत सारे लोग इसको सुन के जो है कि अट्रैक्ट होते हैं और अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इसको एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। आप जानते हो, अब वो फेबल्ड सिटी है, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कहानियों में बनाकर लोग उसकी खोज में जाते थे। इंडिया में भी एक जगह है जिसको एल डोराडो ऑफ इंडिया कहा जाता है, Yes, यू नो द Polar नेम? Gold Mines. Yes, sir. Polar Polar Gold Gold. Mine. There is a movie based on that, Yes, sir. right? KGF ही नाम है उसका भी। KGF. It is in the state of सर आंध्र प्रदेश में है शायद। हाँ, आंध्र प्रदेश में। वाह जी वाह, ठीक है। yes, sir. Yes, sir. चलो, यस कृष्णा शर्मा। Yes, sir. Before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. But from the 16th century, its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. Precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europeans' wealth and financed its trade with Asia. Legends spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth. Many expeditions
एक्सपेडिशन से ये क्या लिखा है? Expeditions. ओके सर, एक्सपेडिशंस. Yes. यस सर. सर मैं एक्सपेडिशन ढूंढ रहा हूँ सर, मैंने दूसरी तरफ से खोली हुई ना अपने बुक. Continue. Expedition set off in search of El Dorado, the faded city of gold. The Portuguese, Spanish conquered and colonized of America was decis- decisively underway by the mid-16th century. European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not conventional military weapon at all. It was the germs, such as those of smallpox, Underline, all these things are very important for your examination point of view. that they carried on their person. Because of their long isolation, America's original inhabitants has no immunity against these diseases that came from Europe. Smallpox, in particular, provide a deadly killer. Once introduced, it spread deep into continent ahead even of any Europeans researching there. It killed and decimated whole community, paving the way Paving the way for conquest. paving the way for conquest. Is it clear to all of you till here? Did I taught you all these things? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो next कौन पढ़ेगा? Yes, sir. Raise your hand. Rishabh Singh. पढ़. I think Rishabh is the one who has. Yes, Rishabh, Narayan, then Manoj. Yes, Rishabh. Yes, sir. Sir, am I audible? Yes, you are. Yes, sir. Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not diseases such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune. Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. Religious conflicts were common, and religious dissenters were persecuted. Thousands of therefore fled Europe for America. Here, by the 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. Until well in the 18th century, China and India were among the world's richest countries. They were also preeminent in Asian trade. Underline all these things. Yes, sir. They were also preeminent in Asian trade. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. China's reduced role and rising importance of Americas gradually moved the center of world trade westwards. Europe now emerged as the center of the world trade. देखो, I hope that this figure is visible to all of you. तो देखो ये लोग सब slaves हैं. These all are slaves, and this one is a buyer, and he is looking after each and everyone to whom he should, buy. So they are in their good clothes, so that someone can come and buy them. And this question, this figure-based question was asked in NTSC as well as in CBSC. Right. So we will be doing this part also after the completion of the chapter, but you should know the important first. Right? समझ में आ रही है बात? Can you Yes, sir. see this? Okay. Yes, That's good. Yes, sir. Now, the next one is the 19th century, the thing which I was talking about. Let us start. So everyone out there you should mute yourself, right? तो हमने क्या पढ़ा?
हमने पढ़ा कि 1815 से 1914 का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसमें देखोगे फ्लोज के बारे में डिस्कशन होगा, द फ्लो विच आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग, ठीक है। फ्लो होगा किन चीजों का फ्लो होता है? फ्लो ऑफ ट्रेड, किसका होता है? ट्रेड का होता है। देन फ्लो ऑफ माइग्रेशन और फ्लोज ऑफ माइग्रेशन, राइट। और फिर उसके बाद थर्ड क्या है आपका? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। दिस कैन बी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एज वेल एज लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इस तरीके का फ्लो क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, राइट। अब इसी फ्लो की वजह से आज के डेट में आज भी यही फ्लो हो रहा है। तो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, आपस में क्या हो गए? इंटरकनेक्टेड। क्या हो गए आपस में? इंटरकनेक्टेड, because this flow is taking place, and this interconnection, interweaving and interconnectivity, right, resulted into globalization, ठीक है। अब इस तीनों फ्लो में देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। द प्रॉब्लम विथ माइग्रेशन, कैपिटलिस्ट विल लाइक टू हैव ट्रेड, will like to go for trade, will like to go for investment, but they will never like for migration. They will never like migration. अब माइग्रेशन कब होता है? When there is a push and pull factor. You move from one country to another in order to get more income, in order to live a better life, a prosperous life, in order to get a job. Suppose if you are moving from India to America or USA rather, so what is the reason behind it? Why you are leaving out your home? Any specific reason Sir, for that? job. Yes, there is a big reason. You think that America, US of A is more developed one, you will be more prosperous, you will get a high paid job, and you should rather shift yourself to America only. So, okay, when you are doing this, will the American will like this? The answer is no. American will not like this. American will think that this person has come from India in order to get a job. It means we, the people of America, will not get a job as we are the very citizen of this country, and someone else from other country will come and will work over here and will snatch our job. That's what the Donald Trump campaign used to say. Means Donald Trump himself used to say, American first. Right? So there is an issue with visas. You might have heard about it also. Yes, sir. H1B visa and all. Okay, so there is a problem with migration. Developed country will not like people to be hired from developing nation. They will think that okay, they are coming from developing nation and they are snatching jobs. They are bringing out germs, right? They will spread their culture, their tradition, and this will make our society a complex one and blah blah. Right? I hope this message is clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो अब wherever you go, ठीक है, if you are an Indian, you should remain in India, because wherever you will go, you will not treated as equal as you will be treated in India. You are suppose a very good engineer, a marvelous engineer, a very good intellect, or a very good doctor, scientist. You will not find the kind of society which you will find in India. You will find the society is very much different. People are very open, and people within them will have some sort of insecurity with those who are from outside. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. सर अलग लगेंगे ना उन्हें. हाँ, तो अलग लगेंगे और थोड़ा रहेगा, भले वो ना कहें freedom, equality, fraternity, democracy and all. They will never say. But there will be some sort of insecurity, and people from other region will be in some way or the other treated as inferior and will be, can find some sort of punishment from those who are living in the society. बहुत सारे ऐसे केसेस न्यूज अगर पढ़ते रहोगे तो आपको मिलते रहेंगे. एक इंडियन पे अटैक हो गया, एक अफ्रीकन पे अटैक हो गया, कलर्ड पे अटैक हो गया. देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, राइट? तो चलो, हम उतना ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करने नहीं बैठे हैं, राइट? Now the time has come to discuss the next topic, right? और माइग्रेशन वाला जो है याद रखिएगा. अभी जब
यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी देखोगे पूरी तरीके से क्या होगी, चेंज होगी, राइट। ब्रिटेन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइज होता है 1730 से ही आप देखोगे तो 1750s में इंडस्ट्रीज वगैरह कई सारे सेटअप हो जाती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई कहाँ, यूरोप में, पर्टिकुलरली इंग्लैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप में अगर आप खुद के लिए खाना बना लेते हो, खा लेते हो, तो दिस इज नॉट एनफ, कुछ और करो। पहले तो लोग फूड जो है सबसे पहले फूड के लिए देखा करते थे कि दैट वी शुड हैव अ फूड एट इन आवर होम, बट यहाँ पे अब चीजें क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई हैं तो चीजें थोड़ी सी क्या करती हैं, बढ़ जाती हैं। पर्टिकुलरली यूरोप में अगर हम बात कर रहे हैं तो यूरोप में किसकी बात करेंगे, ब्रिटेन, कि हमारे यहाँ सेल्फ सफिशिएंसी फूड अगर आप है तो इट इज नॉट एनफ, वी शुड गो फॉर समथिंग एल्स, वी शुड बी मोर, वी शुड एक्सप्लोर आवरसेल्फ रादर। और इसी समय ब्रिटेन में क्या होता है, पॉपुलेशन का भी इंक्रीज होता है। किसका इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन का, राइट। इज इट क्लियर, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो फूड की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, फूड की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। ब्रिटेन में ज्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज को चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसा चाहिए, सस्ता, ठीक है। तो सस्ता के लिए कहेंगे कि ब्रिटेन को कहेंगे कि आप बाहर से भी क्या करो, सपोज ये बाहर है, बाहर से भी फूड मंगाओ, सॉरी रॉ मटेरियल मंगाओ। क्यों, क्योंकि वो चीपर होंगे, ठीक है। चीपर होंगे तो ये रॉ मटेरियल लाएंगे, इंडस्ट्रीज प्रोसेस कर देंगे और उसको एंड प्रोडक्ट बना के ब्रिटेन में और अदर कंट्रीज में बेचेंगे। अब जब ये बाहर से आ रहा है रॉ मटेरियल, तो जो यहाँ के पेजेंट्स हैं वो खुश होंगे या दुखी होंगे, सर दुखी। दुखी हो जाएंगे कि हम भी तो बना रहे हैं, हम भी Yes, तो रॉ sir. मटेरियल जो है कि कल्टीवेट कर सकते हैं, अब बाहर से क्यों मंगा रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो तो उसको बंद करो, पहले हमारा जो है हमारे यहाँ का जो है उसे खत्म करो। बट यहाँ पे जो है क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे वो रिसोर्सेस कम थे और डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो प्राइसेस ज्यादा थे। और ये जो बाहर से आ रहे हैं इसके प्राइसेस क्या हैं, कम है, और यहाँ के प्राइसेस, घरेलू उत्पादन के प्राइसेस क्या थे, ज्यादा थे। तो इंडस्ट्रीज को कौन अच्छा लगेगा, जिसका पैसा ज्यादा है या जिसका पैसा कम है, सर कम वाला। इसका कम है। तो कम वाले को कहेंगे कि ऐसा करो कि इसको आने दो। यहाँ की गवर्नमेंट देखेगी कि पेजेंट्स ज्यादा हैं, पेजेंट्स को कहेगी कि अभी जो है कि तुम्हारी बात मान लेते हैं और हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट मना कर देंगे। बट जब इंडस्ट्रीज का प्रेशर बनता है, जब पुअर पीपल का प्रेशर बनता है, अब बताओ पुअर पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो कौन सा खरीदेंगे, इंपोर्ट वाला या जो है कि जो विद इन कंट्री बन रहा है वो वाला, सर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट वाला। इंपोर्ट वाला, क्योंकि वो क्या है, सस्ते हैं। तो पुअर पेजेंट और इंडस्ट्रीज के कंपल्शन की वजह से ब्रिटेन को लॉ हटाना पड़ेगा। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉर्न के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉर्न। अब कॉर्न लॉ याद रखिएगा, कौन सा लॉ, कॉर्न लॉ, राइट। तो ये कॉर्न लॉ क्या था, इंपोर्ट डिस्करेज करने के लिए, और बाद में इसे क्या किया जाता है, स्क्रैप कर दिया जाता है। इज इट क्लियर, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Just wait for a while. किसी को कोई डाउट, No, sir. नो सर। am I audible? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब ये अब जब ये कॉर्न लॉ हट जाता है कि लोग प्रेशराइज करते हैं और कॉर्न लॉ क्या हो गया, हट गया। अभी जब कॉर्न लॉ हट जाता है तो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होता है और पुअर पीपल फीड कर पाते हैं, उनकी फीडिंग अच्छी हो पाती है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सस्ता मिल पाता है। अब ये जो पेजेंट्स हैं इनको प्रॉब्लम होगी कि उनका तो अब सामान बिक नहीं रहा, बाहर से आ रहा है सस्ते में, तब ये कहाँ जाएंगे, अब ये घूमेंगे शहरों की तरफ। कहाँ जाएंगे, शहरों में, ठीक है। ब्रिटेन शहर है, वहां पे जाएंगे और वहां पे कुछ जो है
खोजने की कोशिश करेंगे काम, और ये देखो अर्बन डेवलपर्स यहाँ पे आके स्लम्स बना के रहने लगेंगे। तो अब जब ये लोग ज्यादा कंजप्शन उनका शुरू होता है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अब फिर जब कंजम्पशन ज्यादा होता है, ठीक है, कंजम्पशन इन द सेंस कि फूड की रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होती है और इंडस्ट्रीज हैं, तो थोड़े वेजेस भी अगर लोगों के इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डिमांड करना शुरू करेंगे। वो क्या करना शुरू करेंगे? डिमांड करना शुरू करेंगे। आपने पढ़ा है टर्शियरी सेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। यस सर। Yes, sir. Certain segment of society, if income rises, they will demand, right? Yes, sir. तो अब यहाँ पे जब डिमांड बढ़ती है लोगों की, तो अदर कंट्रीज जहाँ पे ज्यादा कल्टीवेशन किया जा सकता है ग्रेन्स का, वो कल्टीवेशन में लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं? ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, आपको याद होगा ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा लार्ज ई स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे, वास्ट ई Yes, sir. स्टेट्स लॉकडाउन, ठीक है। रशिया, आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है तो 85% एग्रीकल्चरिस्ट हैं, राइट? ये Yes, सब sir. याद है। फिर Yes, ऑस्ट्रेलिया है, साथ ही साथ अमेरिका भी है। तो ये सब मिलके वे क्या करेंगे? फीड करने की कोशिश करेंगे वेस्टर्न यूरोपियंस को, पर्टिकुलरली ब्रिटेन को, कि ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे कल्टीवेट करके वहां जाके बेच दें। अब यहाँ पे कल्टीवेशन जब ये लोग करने शुरू करेंगे तो इनको क्या चाहिए? लेबर, ठीक है, इनको क्या चाहिए? लेबर। अब ये लेबर कहाँ से आएंगे? दीज लेबर्स आर नो वन बट दोज हु आर लिविंग इन एशिया, राइट? और द स्लेव्स और इंडेंचर्ड लेबरर, राइट? यस सर। Yes, sir. Is this much is clear to all of you? यस सर। Yes, सर sir. एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जो खुद के उनकी जो ब्रिटेन के खुद के लेबर्स थे सर, जब एक टाइम पे सर जब इंपोर्ट होना शुरू हो गया तो सर उस टाइम तो डिमांड कम हो गई होगी ना, मतलब फूड की। सर उस टाइम पे कैसे प्राइसेस हायर है? इंपोर्ट की डिमांड कम हो गई? नो सर, मतलब? जब इंपोर्ट हुआ सर फूड आइटम्स का, मतलब बाहर से, तो सर हाँ। उस टाइम पे सर जो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे सर, उसका प्राइस तो अपने आप कम हो गया होगा ना, क्योंकि उनके फूड की डिमांड कम हो जाएगी। कैसे कैसे उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे? अगर उन्होंने 100 रुपए दे के कल्टीवेट किया है और जो है 50 रुपए में मार्केट में बिक रहा है कहीं किसी और के थ्रू, तो वो क्या 100 रुपए का तुम जो है 50 रुपए में बेचने लोगोगे? नो सर। ओके। है ना? यस सर। सर मतलब डिमांड और सप्लाई वाली बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर बेचना चाहें तो बिक तो जाएगा, बट लॉस होगा, हेवी लॉस होगा। यस सर। और ओके। अगर चलो एक बार लॉस सह लेंगे तो दोबारा नहीं करेंगे ये काम, तो कहेंगे कि हम तो शहर में जाएंगे वहां काम करेंगे। यस सर, अंडरस्टूड सर। ओके सर। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ देखोगे कि इंपोर्ट के साथ साथ इन सारी चीजों के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि अब वही प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेवलप करना है। यू नीड टू हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो रोडवेज है, शिप्स हैं, ठीक है, इन सब का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, बनाया जाता है, घर बनते हैं। अब ये सारी चीजें जब क्या है? इन्वेस्टमेंट है। दिस विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, दैट यू आर मेकिंग आउट द शिप्स, यू आर बिल्डिंग अप रोड्स, you know, constructing houses. This will require money. From where money will come? Money will come from capitalists, and many of the capitalists are living in London. तो लंदन से लोगों को पैसा मिलता था और लोग क्या करते थे? उस काम को करते थे, राइट? कैपिटल का फ्लो देखो, इसी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल का फ्लो। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है लेबर की। तो कुछ लोगों को लगता है भाई अब यहाँ ब्रिटेन में भी बात नहीं बन रही है तो चलो अमेरिका चलते हैं, चलो जो है रशिया चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में कौन है? ज्यादातर लोग यूरोपियंस ही तो, ब्रिटेन के लोग हैं। यस सोचो, एशिया है, एशियन नेशन में सभी कलर्ड हैं, और उसके जस्ट नीचे जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस के नीचे एक कॉन्टिनेंट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे सब गोरे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज यूरोपियंस वहां जाके सेटल हुए हैं। इवन बहुत सारे क्रिमिनल्स थे वहां पे यूरोप में, वो वहां जाके सेटल होकर आज रईस बने हुए। इज इट क्लियर? और सर ब्रिटेन Yes, की जो sir. क्वीन है सर, वहाँ की भी क्वीन है ना ऑस्ट्रेलिया की? ऐसा कुछ भी है शायद। ऐसा कुछ है, देख लेना। आई थिंक ऐसा कुछ सर नहीं होना इंडिया चाहिए। की भी है। यस सर है शायद। ऐसा सर कुछ वीजा नहीं लगता ना सर क्वीन को। क्वीन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये कह रहा है कि क्वीन यहाँ ब्रिटेन की भी क्वीन है और ऑस्ट्रेलिया की भी क्वीन है, ऐसा Yes, कह लो sir. ना।
यस सर, ऐसा था सर, मतलब यस सर, क्वीन एलिजाबेथ थी शायद। यस सर। अरे सर वो अभी दोनों की आज के डेट में ऐसा कुछ है? सर मुझे मतलब 2000 के टाइम का सर पता है सर, ये मैंने पढ़ा था सर, अभी का से प्रेजेंट का नहीं पता। चलो देखते हैं इसको, इस चीज को। ठीक है, ये कुछ जो है कि जानने वाली चीज है। हाँ, पहले जब था तब तो ठीक है, यूरोप ब्रिटिश के अंडर में था। ठीक है, पीपल यूज टू मूव एंड तो वो उनके कंट्रोल में था। फिर 2000 वाला देखता हूँ मैं पॉइंट। ठीक है। यस सर। सर और ये पूछना था सर, वीजा नहीं लगता क्या सर क्वीन एलिजाबेथ को इंडिया आने में? वीजा नहीं लगता क्वीन एलिजाबेथ? यस सर। तो क्वीन एलिजाबेथ कब का टाइम पीरियड है ये? सर मैं अभी की बात कर रहा हूँ सर, आजादी के बाद सर, अभी भी नहीं लगता सर, ऐसा मैंने देखा है सर। क्या है ऐसा? ऐसा देखा है तुमने? सर मतलब ये सब, मतलब सर पढ़ा था कि सर पाकिस्तान और इंडिया में नहीं लगता। एलिजाबेथ को वीजा नहीं लगता, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? यस सर, सर ये कंफर्म करना था। चलो देखते हैं। अब ये तो जो है मुझे भी देखना होगा कि क्वीन एलिजाबेथ क्या है, वीजा देती हैं इंडिया में या नहीं देती हैं। ठीक है, यस सर। चलो अच्छी बात है। तो मोर और लेस जैसा मुझे लग रहा है कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। फिर भी देखते हैं आगे क्या है, इसमें क्या रीजन है। अगर नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? सर वैसे प्रेसिडेंट का तो लगता है ना सर, जो भी यूएस का होता है ना? यस सर, सर इसलिए पूछना था। चलो, यहाँ तक जो भी बताया है मैंने सभी को क्लियर है? यस सर। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। तो चलो नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? रीडिंग कर लेते हैं, राइट? बट आई थिंक रीडिंग के लिए टाइम नहीं बचा है। सर कल कर लेंगे सर, कल क्लास है ना। हाँ, क्लास तो रेगुलर है। ठीक है, हम लोग यहाँ से यहीं से रीडिंग करनी है ना? यस सर। तो आप लोग अब देखिए, इस चैप्टर का नोट्स अच्छे से बनाइएगा, एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो पॉइंट वाइज नोट्स बनाते सर चलेंगे। मेरे भी एग्जाम्स पड़ रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीक से आपको भेज दूंगा। हाँ, आप क्लास में सर बैठे बैठे मेरे भी सुनो। मनोज, जिसके एग्जाम है या जो भी कुछ ऐसा कुछ है, तो वो क्लास में बैठे बैठे भी सुनते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है नोट्स बनाने का। यस सर, मैंने थोड़े बहुत बनाए हैं क्लास में बैठ के। ये सर मैंने भी बना लिए सर रफ नोट सर, जब ऐसे कहते हैं। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है, यस सर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय एवरीवन।